ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو سیشن ہے. میم ہنا پلیز یو کین اسٹارٹ ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Is the voice clear? Yes. السلام علیکم مس. Is the voice clear? Yes. الحمدللہ. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اسٹارٹ کرتی ہوں اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میرا نام ہنا عادل اوسا والا. تو میرا نام ہنا عادل اوسا والا ہے. سرٹیفائڈ کاؤنسلر، لائف کوچ، NLP practitioner and a hypnosis practitioner. And I'm a certified coach from the Aware Academy, Australia, and we are working on porn addiction. تھوڑا سا میرا تعارف اس لیے تاکہ جو سن رہے ہوں اگر فیوچر میں یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی کاؤنسلنگ کی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک کا ہمارا نام ہے امپورٹنس آف ڈیلی ذکر. جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ذکر کا معنی کیا ہے، ذکر ہوتا کیا ہے، ذکر کیا ہے. اوکے، آپ آنسر کرنا چاہیں گی؟ عائزہ شبیر، you have raised your hand. Should I continue or I should wait for her to answer? I think continue by mistake maybe شاید. Okay. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ذکر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ذکر جو ہے، ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. ٹھیک ہے جی. بندہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. وہ ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اور اسپیشلی اب ہم جس مہینے میں ہیں، جس منتھ میں ہیں، وہ تو کہا ہی جاتا ہے شہر الذکر، یعنی کہ ذکر کا مہینہ. جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ریچارج کر رہے ہوتے ہیں، ہم چارج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم پراپر طریقے سے اپنے آپ کو اسے مینٹین کر لیں اور پھر ریسٹ آف دا ایئر جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو اسپیشلی ہم امپورٹنس آف ڈیلی ذکر کو ہم فی الحال جو ہے اپنے رمضان کے پرسپیکٹو سے دیکھ کے اس کے بعد اس کو ہم اپنے ایئرلی جو بعد کے جو منتھس ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو اسپیشلی جو ہم رمضان میں ہیں، جب ہم روزے میں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارا دل زیادہ مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر جگہ شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آل عمران کی آیت ہے یہ 191. یعنی کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کریں. ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہے یا کیا فائدہ نہیں ہے. تو ذکر کرنے میں بیسکلی جو ہے ہمارا ہی فائدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی اکرم، آپ لوگ اپنے مائک پلیز میوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہ ڈسٹرب کرے.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो कसरत से जिक्र किया करते थे। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर से रिवायत है कि एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूँ और वो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। इसका मतलब ये है कि हमारा ये मामूल होना चाहिए कि हम हर वक़्त अल्लाह ताला को याद करते रहें। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा प्लान्ड करें कि हम कब अल्लाह ताला को याद करेंगे। चाहे हम चल रहे हैं, हम वॉक पे जा रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसमें अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं। एक और हदीस है, पहले इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस की तरफ हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इंशाल्लाह आज हम इसको एंड करेंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी लेक्चर होता है तो इसमें इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, लेकिन उस हैबिट को हम किस तरीके से डेवलप करें अपनी लाइफ में वो नहीं बताया जाता। तो हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ज़रूर देखेंगे कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और हदीस में है जो कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन में 100 मरतबा ये कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसको 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाएंगी। 100 deeds only for reciting this verse, हमको 100 नेकियां मिल जाएंगी और 100 नेकियां ही नहीं मिलेंगी बल्कि 100 बुराइयां डिलीट भी हो जाएंगी और इस दिन वो शाम तक शैतान के शर से महफूज रहेगा। तो और क़यामत के दिन ऐसा इससे बेस्ट अमल करने वाला कोई नहीं होगा और जो शख्स जो है इससे ज़्यादा भी बोल देगा तो उसको उससे ज़्यादा अजर मिलेगा। और इसमें ये भी फरमाया गया है कि जिसने दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहा तो उसकी सारी खताएं माफ़ हो जाएंगी और चाहे वो खता उसकी जो है समंदर की झाग के बराबर क्यों ना, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास खताएं भी हों और हम कसरत से अगर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लेंगे तो हमारी सारी खताएं माफ़ हो जाएंगी। अभी मैंने आप लोगों के साथ 2 अहादीस को ज़िक्र किया, 2 अहादीस आपके सामने पढ़ी हैं। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ताला हमारी बेटरमेंट के लिए सब चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम किसी भी तकलीफ में जाएँ, अल्लाह ताला हमें पनिश करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सारे ज़िक्र जो मामूल के ज़िक्र हैं, वो हमें करने के लिए कहे ताकि हम जो हैं अपने आप को इस दुनिया में ही क्लियर कर लें। इसकी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस थी। इसके अलावा अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ज़िक्र करने से हमें मिलता क्या है? हम हर दफ़ा देखते हैं ना कि क्या चीज़ है जो हमें इससे हासिल होती है। तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब हम ज़िक्र करते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद कर रहे हैं। और क्या होता है कि जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद करते हैं तो हमारे ऊपर चाहे मुश्किल आए या हमारे ऊपर कोई आसानी आए, हम हैप्पी हों या हम सैड हों, हम हर हाल में अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद करते हैं। फिर इससे क्या होता है कि हमारा बॉन्ड अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत मज़बूत हो जाता है। कोई हो ना हो, कोई आपके पास हो ना हो, कोई आपसे रूठा हुआ हो, कोई आपको तकलीफ दे रहा हो, आपके पास कौन होगा? आपके पास सिर्फ़ आपका रब होगा। क्योंकि आपका बॉन्ड उससे बहुत ज़्यादा मज़बूत हो चुका होगा, क्योंकि आप हर वक़्त उठते-बैठते आप जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद कर रहे होंगे। इसके बाद क्या होता है, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। हमारे अंदर शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत पैदा हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, हम कंटेंट हो जाते हैं। हम हर चीज़ जो हमें हासिल हो रही होती है उससे हम खुश हो जाते हैं, कंटेंटेड हो जाते हैं। कनेक्शन हो गया अल्लाह ताला से हमारा, हम कंटेंट हो गए, हमने अल्लाह ताला को याद किया, हमारा साथी, हमारा मददगार जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ही बन गए। फिर क्या होता है, हम शो करते हैं, हम ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला को हम कहते हैं कि वी लव यू अल्लाह सुब्हाना ताला। हम दुआ माँगते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह ताला का प्यार पैदा हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, जब हम ज़िक्र करते हैं, हम जब अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली शो करते हैं अपना प्यार अल्लाह सुब्हाना व तआला से। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा प्यार एक एक प्रैक्टिकल चीज़ माँगता है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो क्या करता है, वो अफ़ेक्शन शो करती है। बच्चा भी हग कर लेता है, माँ भी हग कर लेती है। इसी तरह जब हम अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल हम कैसे शो करते हैं, अपने अमल में शो करते हैं। और अमल में भी क्या शो करते हैं, जो अल्लाह ताला को पसंद है, हम वो सारे काम करते हैं, ठीक है? और इसके बाद क्या होता है कि हम उस सारे काम को करने के लिए किसको देखते हैं?
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी हो जाते हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है एक चेन है जो कि कंटिन्यू जिक्र से हमें हासिल होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसका बेनिफिट ये है कि हम हमारे साथ जो शैतान हमसे दूर हो जाता है, बिकॉज हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह शैतान को नहीं पसंद कि हम अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, तो हमसे दूर हो जाता है। हमें सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, इनर पीस हासिल होता है, हमें सस्टेनेंस हासिल होती है, हमारा दिल सुकून में आ जाता है कि कोई चीज़ है जो हमने कर ली। अगर आप नोट करें, अगर फॉर एग्जांपल हमारी आदत है हम सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमें एक सुकून हासिल हो जाता है कि हम एक प्रोटेक्शन में आ गए हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्शन हमें उसी वक्त हासिल होती है जब हम उस जिक्र को दिल से पढ़ें। इसी तरीके से सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, हमें ईज़ का एहसास होता है और वही बात हमारे अंदर शुक्रगुज़ारी और हमारे अंदर कर्टेसी की कैसे पैदा हो जाती है, एक सिफत पैदा हो जाती है कर्टेसी की। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मोहब्बत है, हमारी जो मोहब्बत अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो मोहब्बत जो है हमारे अंदर इस्लाम का स्पिरिट लाइट कर देती है। हम हर कुछ करने को रेडी हो जाते हैं। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो, अपनी प्रेयर में, अपनी दुआ में मुझे याद करो और मुझे ग्लोरीफाई करो और मेरी हम्द व सना बयान करो और मैं भी तुम्हें इसी तरह याद करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ। वो बंदा जब मुझे किसी छोटी महफिल में याद करता है तो मैं उसको बड़ी महफिल में याद करता हूँ, उसको फरिश्तों की महफिल में याद करता हूँ। तो क्या होता है कि हमारा जो हमें याद करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हमें याद करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों के अंदर हमारा लव उनके अंदर पैदा कर देता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो अल्लाह ताला को whoever remember me in his heart, यानी अल्लाह ताला को जो अपने दिल में याद करता है तो अल्लाह ताला भी अपने दिल में उसको याद करता है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि हम जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ हम सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। कितना आसान है ये सब पढ़ना, लेकिन क्या होता है हम अगर इस इंटेंशन के साथ पढ़ें कि हाँ हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला भी हमें याद कर रहा है। एक कॉमन प्रैक्टिस देखी गई है कि जब हम ज़िक्र के अंदर एंगेज्ड होते हैं, हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, हमारी ज़बान जो है नेक कलमात के अंदर रहती है, तो फिर वो सारी बुराइयों के से दूर रहती है। वो किसी भी बैड लैंग्वेज को नहीं कबूल करती है। हम गीबत से, हम बहतानों से, हम बैकबाइटिंग से, अब्यूजिंग लैंग्वेज से हम दूर रहते हैं क्योंकि हम मसरूफ़ होते हैं, हमारी ज़बान मसरूफ़ होती है ज़िक्र करने में। ज़िक्र करने से हमारा दिल, जो बेनिफिट है, ज़िक्र करने से हमारा दिल प्यूरिफ़ाई हो जाता है। हमारा दिल साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा आसान तरीका इबादत का, हम नमाज़ के लिए भी क्या होगा, हम वज़ू करने जाएँगे, हम नियत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम देखेंगे, नफ़िल अदा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ज़िक्र क्या है, हम कहीं भी लेटे हैं, हम कहीं भी बैठे हैं, हमने अपनी सिर्फ़ ज़बान से उसको अदा करना है। हम गाड़ी में बैठे हैं, हम ज़िक्र कर सकते हैं, हम कहीं वेटिंग एरिया में बैठे हैं, हम ज़िक्र कर सकते हैं, हम बेड पर लेटे हैं, हम ज़िक्र कर सकते हैं, हमें नींद नहीं आ रही, हम ज़िक्र कर सकते हैं। आप बहुत अपसेट हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, आप ज़िक्र कर सकते हैं। क्योंकि कोई आपके दिल को वो सुकून नहीं दे सकता जो अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला की याद आपको दे सकते हैं। तो क्या करता है, अल्लाह ताला ने बहुत एक ईज़ी तरीका हमें बता दिया। एक और हदीस है, इसमें बताया गया है कि जो अल्लाह ताला का ज़िक्र, इसका मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला उसको एक स्टेप ज़्यादा देता है कंपैरेटिवली टू द बंदा जो कि दुआ में बिज़ी रहता है। ये नहीं कि दुआ करने वाले को दुआ नहीं मिलती, दुआ करने वाले को दुआ भी मिलती है, लेकिन जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, उसको ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वालों में से बनें। और फिर क्या होता है, हम लेडीज़ हैं, हमें बड़ी फ़िक्र होती है, हमारा चेहरा ग्लो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हर किसी को फ़िक्र होती है कि हमारा चेहरा शाइन करे, ग्लो करे, उसके लिए हम क्रीम्स लगाते हैं, फेशियल करवाते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करेगा, क्या होगा? उसका चेहरा और उसका हाथ, उसका चेहरा शाइन करेगा, ब्राइट लुक आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है? तो दुनियावी एस्पेक्ट भी अल्लाह ताला ने दे दिया कि जो अल्लाह ताला को याद कर रहा है, तो उसका जो चेहरा है, वो भी ब्राइट हो रहा है और उसका जो क्या कहते हैं, उसका दिल भी ब्राइट हो रहा है, ठीक है जी? और सबसे अच्छा,
अब जैसे कहते हैं ना कि जिस भी महफिल में अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो फरिश्ते जो है उसको सराउंड कर लेते हैं। तो जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द कौन होता है? फरिश्ते हमें सराउंड किए हुए होते हैं, हमारे इर्द गिर्द फरिश्ते होते हैं। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ तो हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यही इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कहते हैं कि हिपोक्रेसी यानी मुनाफ़िक़त की निशानी भी है, डिस्क्राइब की गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक्सप्लेन किया है कि जो मुनाफ़िक होता है वो अल्लाह ताला को याद नहीं करता। वो अल्लाह ताला को याद करता है बट बहुत थोड़ा करता है, बहुत रेयरली याद करता है। तो हमें उस कैटेगरी में नहीं आना। हमें अल्लाह ताला से ये नहीं कहना अगर आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको याद करूँगी, बल्कि अल्लाह ताला से कहना है कि हम हर हाल में आपको याद करेंगे। फिर ये होता है कि जब हम ज़िक्र कर रहे होते हैं, जब हम हर जगह अब गाड़ी में जाते हुए भी हम ज़िक्र कर रहे हैं, तो जिस जिस पाथ पे हम चले हैं, जिस रोड पे हमने क्रॉस किया है, उसकी हर चीज़ वो नोट कर लेती है। वो चीज़ नोट हो जाती है कि यहाँ से ये बंदी गुज़री थी और फिर ज़िक्र किया था और रोज़े महशर क़यामत के दिन ये सारे लोग, सारी चीज़ें, हमारा अतराफ़ इस बात की गवाही देगा कि हम ज़िक्र करने वाले थे। ये सारी चीज़ें हमें बाद में काम आएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारा ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम अल्लाह ताला से बहुत करीब हो जाते हैं। तो ज़िक्र जो है इसके जो बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं कहूँगी वो ये है कि हमारा बॉन्ड अल्लाह ताला से बहुत मज़बूत हो जाता है। ठीक है जी? अब हम थोड़ा-सा इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था मैं ज़रूर आपको ये बताऊँगी कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको छोटे ज़िक्र बता दूँ मतलब जो ज़िक्र हमें करने को कहा गया है उसके लिए हमें बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है? इसमें जो है सुबह और शाम के अज़कार हैं, सुबह के टाइम हमें क्या पढ़नी चाहिए, कौन-सी दुआ पढ़नी चाहिए और शाम में असर के बाद असर के वक़्त तक हमें क्या करना चाहिए, वो सारे अज़कार हमें मिल जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ये होता है वो सारी दुआएँ हमें याद नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि हम क्या ज़िक्र करें, हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो छोटे से अज़कार जिसको हम पढ़ सकते हैं वो ये है अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप लादात दफ़ा पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप ये पढ़ लीजिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील आप ये पढ़ लीजिए, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ आप ये पढ़ लीजिए और अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिक बिही शैया, ठीक है? या आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लीजिए। ये सारे वो छोटे अज़कार हैं जो हम समझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमें और मुस्तकिल हमारी ज़बान को तर रखेगा। आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लीजिए, आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लीजिए, या ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सारी टाइनी टिप्स हैं, टाइनी टाइनी अज़कार्स हैं, जो कि दिखने में, पढ़ने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका जो वज़न है मीज़ान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसके अलावा ज़रूर मसनून दुआएँ, मसनून अज़कार जो कि हमें बताए गए हैं, वो हम ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कि सारे अज़कार हमें प्रोटेक्ट करते हैं एज़ अ शील्ड, प्रोटेक्टेड रहते हैं हम। तो ये अज़कार हमें हेल्प आउट करते हैं। चलिए जी हम प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ आते हैं कि हम कैसे इसको अपना रूटीन बना सकते हैं। अब जैसे रमज़ान है, रमज़ान में तो हमारा जो ईमान का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। हम बहुत अच्छा अपने आप को बूस्ट कर रहे होते हैं ना कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन इसके लिए फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर 1 इज़ दैट कि अज़कार को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, खाना बना लें, ये कर लें, वो कर लें, बट जस्ट फिक्स अ प्रायोरिटी कि हमें ये करना है, ठीक है? आपने उसको फिक्स कर लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एट 11 o'clock आई एम गोना डू दिस, मैं ये करूँगी, ठीक है? तो जितना भी आपने वो पढ़ना है, आप ज़रूर उसको पढ़ लीजिए, ठीक है? बेसिकली जो सुबह और शाम के अज़कार होते हैं, वो तो फजर के बाद ही होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप नहीं कर सके, तो एटलीस्ट यू जस्ट शुड फिक्स अ टाइम और आप उसको अपनी प्रायोरिटी बनाएँ कि आपने ये करना है, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, ऑलवेज़ स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप। हम हमेशा बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं, छोटा स्टेप लीजिए। यानी कि आप कहें कि मैं आज इतना कर लूँगी या मैं इतनी तस्बीहात कर लूँगी या मैं आज इतनी दुआएँ पढ़ लूँगी। मेक अ स्मॉल स्टेप, स्मॉल टाइनी स्टेप्स जो अगर आप लेंगे तो क्या होगा आपकी हैबिट्स को बनना आसान हो जाएगी। क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि रमज़ान के बाद हम इस चीज़ से आउट हो जाएँ, इस सर्कल से आउट हो जाएँ। हम चाह रहे हैं कि हम इस सर्कल में रहें और इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी दें। नंबर 2 में हम स्मॉल
स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है, छोटा 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 चंक, आज यही करूंगी, इसके बाद जब वो कंटिन्यू हो जाए इसके बाद मैं ये करूंगी। थर्ड आता है स्टे कंसिस्टेंट। आपने जो कर लिया, आपने जो इरादा किया है, आप उस पर रह जाइए, आपने पीछे नहीं होना, कंसिस्टेंट से आपने काम करना है। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं मुझे बंदा मोमिन का वो काम अच्छा लगता है जो वो कंसिस्टेंट तौर पे करे, कंसिस्टेंसी से करे। यानी कि हम फॉर एग्जांपल हमने तहज्जुद पढ़ी, एक दिन हमने बहुत सारी रकअतें पढ़ी, हमने 10 पढ़ी, 20 पढ़ी, ठीक है, और उसके बाद 2 दिन हम भूल गए। इससे बेहतर है हम 2 रकअत से स्टार्ट करें और उसको कंटिन्यू हम करते रहें, कंसिस्टेंसी हम करते रहें, तो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है, ठीक है। मैं फिर से दोहराऊंगी, नंबर 1 हम अपने अस्कार की प्रायोरिटी को लेकर आए, सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारा अस्कार है। सेकंड जो है हम स्मॉल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। थर्ड जो है हम कंसिस्टेंट रहें इस बात पे कि जो हमें करना है, जो हमने प्रायोरिटी बना लिया वो हमें करना है। इसके बाद एक और आता है, आप अपनी पुरानी हैबिट को अपनी न्यू हैबिट से स्टैक ऑन करें, स्टैक इट ऑन एन ओल्ड हैबिट। तो ये होता है कि मोस्टली जो है हम में से सारे लोग 99.9% लोग हम लोग ऑटो पायलट मोड पर चलते हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, लेकिन हम फिर भी वो कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जब हम सोते हैं, सोने के बाद जब हम उठते हैं, उठने के बाद डायरेक्ट हमारा क्या होता है, या तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा अलार्म लग गया, अलार्म की बेल बजी, तो क्या होगा, हमारा अनकॉन्शियसली हमारा हाथ जाता है, हम इसको बंद कर देते, कभी कभी हम कहते हैं हमें पता ही नहीं चला हमने बंद कर दिया, ठीक है, तो ये होता है। तो अनकॉन्शियसली हम ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता हम वो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं, हम अगर मैनुअल गाड़ी चलाएं, शुरू में जब हमने गाड़ी चलाना सीखी होती है तो क्या होता है, हम बड़ा गौर से उसको पहला गियर दूसरा गियर डाल रहे होते हैं, इसके बाद जब हमारी आदत हो जाती है तो हम खुद से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो हैबिट्स हैं, उठ के वॉशरूम जाना, ब्रश करना या कुछ भी ऐसे काम करना, वो ऑटो पायलट पर चल रही होती है। तो नई हैबिट को डालने के लिए क्या होता है, अपनी नई हैबिट को पुरानी हैबिट पे स्टैक ऑन कर लें। वो कैसे हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अस्कार पढ़ना, आपका प्रायोरिटी है कि आज आपने सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम, आपका फर्स्ट स्टेप आपने ये ले लिया। अब आपकी पुरानी हैबिट क्या है, आप अपना बिस्तर झाड़ दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपना बिस्तर झाड़ दें, तो जब आप अपना बिस्तर झाड़ें तो आप क्या करें, सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम एटलीस्ट 5 टाइम्स और 10 टाइम्स। जब अपना रूम आप क्लियर कर रहे हैं, आपकी आदत है, ठीक है, इट्स योर ओल्ड हैबिट, ये आपकी ओल्ड हैबिट है, वो आपने करनी है। उसको आप कैसे जोड़ेंगे, आप उसको अपनी नई हैबिट से जोड़ देंगे कि जब मैं बिस्तर झाड़ूंगी so I'm going to read this अस्कार 5 times और 10 times, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल और ये भी है कि कुकिंग फूड, आज जब खाना पका रहे हो तब भी आप कर सकते हैं, और जो लोग वर्किंग हैं, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल रमजान के बाद तो हमारी ब्रेक्स भी आती हैं, तो कॉफी ब्रेक आ जाए या कोई आपकी टी ब्रेक आ जाए, तो उसमें भी है कि टी ब्रेक में मैं इतनी दफा पढ़ लूंगी, ठीक है, तो पुरानी हैबिट को आपने नई हैबिट से मिला दिया। या फिर ये कि प्रेयर के बाद आप कर लें कि जब मैं नमाज पढ़ लूंगी तो उसके बाद मैं इतनी दफा पढ़ लूंगी, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि रिसाइटिंग विद योर किड्स, अपने बच्चों के साथ उसको रिसाइट कीजिए, ऊंची आवाज में रिसाइट कीजिए, तो क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे ऊंची आवाज से, आपके बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे और एक मेमोरी आपकी मजबूत तेज हो जाएगी। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है मेक इट इजी एंड एक्सेसिबल, ठीक है, इजी, स्टार्ट विद स्मॉल अस्कार दैट आर इजी, ठीक है, और एक्सेसिबल का मतलब यह है कि एक कॉर्नर आप बना दीजिए जहां आपकी बुक्स रखी हुई हो या अस्कार के कार्ड रखे हुए हो। ये भी अगर नहीं हो सकता, मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप पढ़ लें। ये भी नहीं हो सकता, डाउनलोड द वॉइस, आप वॉइस कर लें, वॉइस ऑन कर लीजिए, उसको प्ले कर लीजिए, बहुत सारे कारी की आवाज़ों में आपको अस्कार मिल जाते हैं, आप उसको प्ले कर लीजिए, आप उसको बजा दीजिए, उसको प्ले कर लें और पीछे पीछे आप पढ़ते रहें। तो जितना आप उसको ईजी बनाएंगे, जितना आप उसको एक्सेसिबल बनाएंगे, आपके लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, मेक अ ट्रैक, ठीक है, आज मैंने कितना पढ़ा, कल मैंने कितना पढ़ा, एटलीस्ट डू इट फॉर 10 टाइम्स। और हमारी साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ अगर हम 20 डेज तक कंटिन्यू कर लें तो वो हमारी आदत बन जाती है। पहले 40 डेज का आता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी नई तहकीक से आता है कि अगर 20 दिन तक हम कोई काम कर लें तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि मैंने एक दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या किया, ठीक है। 7 लास्ट स्टेप है आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम काउंसलिंग और कोचिंग में भी इसको बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत देते हैं, वही होता है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए। आप कोई 2 फ्रेंड्स, 2 सिस्टर्स, हस्बैंड एंड वाइफ, कोई फ्रेंड, कुछ भी, आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाए, वो जो आपको याद दिलाए कि तुमने ये किया। देखिए, दोस्त वो होता है और वो मोहब्बत वो होती है, असली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत वो होती है जो आपको नेकी की तरफ उभारे, ठीक है।
تو آپ کا فرینڈ ہے, آپ اپنے بچوں کو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنا سکتے ہیں کہ تم نے کتنا پڑھا, میں نے کتنا پڑھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. سب سے لاسٹ میں آتا ہے آسک فار ہیلپ, لیکن آئی تھنک سب سے پہلا ہے یہ, ہمیں اسٹارٹ ہی اس پہ کرنا چاہیے کہ پرائیورٹی سے پہلے سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب میں کر تو رہی ہوں, لیکن سب ہوگا کیسے, یہ سب آپ کی مدد سے ہوگا, آپ کی ہیلپ سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں, 7 پریکٹیکل اسٹیپس میں نے آپ سے شیئر کیے جس میں ہم اذکار کو اپنی ہیبٹ بنا سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اذکار آر ریئلی ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. ہمیں اذکار پڑھنے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے لیے کہتے ہیں نا کہ جنت جو ہے وہ ایک بیرن لینڈ ہے, وہ بالکل ایک ایسی زمین ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اس زمین کے اوپر ہمیں درخت اگانے ہیں. تو اس کے لیے جب ہم اذکار پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک درخت اگ جاتا ہے. تو ہمیں اذکار پڑھنے ہیں, اس کی امپورٹنس ہمیں معلوم ہے کہ سارا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں, اور اس کے تھوڑے سے پریکٹیکل اسٹیپس بھی میں نے شیئر کیے کہ اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹائم ہمارا آپ ہو چکا ہے. کسی کو اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو دے کین ٹائپ ان دا چیٹ باکس, اور اف دے وانٹ ٹو اوپن دا مائک دے کین جسٹ آسک دا کویسچن ایز ویل if there are any questions. No questions, I guess. أسأل الله العظيم. Okay, I think کوئی question نہیں ہے تو میں آخری حدیث پڑھ کے اس کو سم اپ کرتی ہوں ہماری آج کی ٹاک کو. مجھے بہت پسند ہے یہ چیز حدیث, اور اس کی ایک نشید بھی ہے جو کہ بچوں کو ہم سناتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ویسے کلمے جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے, میزان میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت ہی پیارے, وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے, اللہ پاک ہے, وہ بہت عظمت والا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ یہ رمضان ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کرے, اور ہمارا قرب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہو جائے, ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں حد سے گزر جائیں, اور اپنے سارے معمول میں اس دعا کو شامل کر لیں, اور اپنے اذکار کو اپنے معمول میں شامل کر لیں. أسأل الله العظيم رب. لاسٹ پوائنٹ کیا تھا, کس چیز کا لاسٹ پوائنٹ پلیز؟ If you can just write it quickly. I don't know آپ کس لاسٹ پوائنٹ کا بات کر رہے ہیں. اپنا لاسٹ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں. I don't know آپ کس لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہی ہیں. ہم نے جو ان کی بات کر رہی ہیں جو اذکار کرنا کاموں کے دوران, کھانا بنانے کے دوران, آئی تھنک یہ وہ کر رہی ہیں پریکٹیکل اسٹیپس کی بات کر رہی ہیں تم. جی. اوکے ٹھیک ہے. تو اس کا پہلا پوائنٹ تھا اذکار کی جو پرائیورٹی, ہم نے اذکار کو پرائیورٹی بنانا ہے, اسمال اسٹیپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں کنسسٹنٹ رہنا ہے, اور ہمیں ایک اپنی اولڈ ہیبٹ کے ساتھ اس کو ملا لینا ہے, اور ہمیں اس کو ایکسیسیبل رکھنا ہے, ایزی اویلیبل رکھنا ہے, اور اپنا ٹریک رکھنا ہے اس کا. اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, کہ مطلب آپ اپنے فرینڈ کو, اپنے بچوں کو, کسی کو بھی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر رکھیں جو کہ آپ کو یاد دلائے کہ ہے نا تمہیں یہ کام کرنا ہے, یا میں کسی کو یاد دلاؤں کہ فلانا آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ کر لیا. مطلب کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں ہمیں ضرور ایک دوسرے سے جیلسی بھی رکھنی چاہیے, اور آگے سبقت لے جانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سب سے آخری نہیں, سب سے آخر اور سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگے.
میں امید کرتی ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کو فائدے مند رہا ہوگا. کیپ ان ٹچ اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آئی تھنک 21 اپریل کو پھر سے ہم ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا میں ضرور یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر میم، بہت شکریہ، اور آپ تمام لوگوں کا بھی جوائن کرنے کا بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جن لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، کل سیم 4 to 5 ہماری دوبارہ سے ٹاک ہوگی، تو آپ لوگ پھر سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ.